हेलो एवरीवन, साक्षी हेयर। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਜੋ ਐਰਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰਸ हैं ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾइंड्स ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾर्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਨਦਰ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾर्ट 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾउन ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਰਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਾउन ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਨਾउन 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਲਟ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਜਾਂ ਵਰਬਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪਲੇਸ। ठीक है, मतलब प्ले दे नाल आपां ने एस यूज़ किया। ओके, या फिर अगर हैल्पिंग वर्ब की गल करा इज़ आ सकता है, हैज़ आ सकता है, या फिर डज आ सकता है। ओके, उस तो इलावा मेन वैसे ही यूज़ करते हैं आपां। ठीक है, सो ये एक गल देखोगे कॉमन की है कि इत्थे इज़ दे विच एस कॉमन है, हैज़, ठीक है, तो ई एस बेसिकली ये होंदा है। या फिर वॉज भी आप यूज़ कर सकते हैं तो इत्थे भी पिछे एस आ गया। ठीक है, सो कहने का मतलब की है कि जो भी अपने को सिंगूलर सब्जैक्ट्स होंगे हैं तो वो आप ऐसिया वर्ब्स या हैल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं जिन्हों के पिछे एस और ई एस का यूज़ किया होंगे, वो भी बेसिकली सिंगूलर ही होंदियां ने। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, ये मिसटेक हो गई सी मेरे तो। इत्थे नर्सिस प्ले आएगा। ओके, बिकॉज नर्सिस प्लूरल है तो आप प्ले की जी प्ले की अगर आप प्ले लिख रहे हैं कला तो प्लूरल फॉर्म ही मन्नी जाती है। ठीक है, उन्होंने किते किते सिंगूलर फॉर्म भी मान लेंगे हैं बट किते किते प्लूरल फॉर्म भी मानते हैं। ओके, सो अज के क्वेश्चंस देखते हैं। सब तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन आर्टिस्ट हुडविंग द ओल्ड लेडी व्हेन शी सोल्ड हर फ्रॉडुलेंट इंश्योरेंस। ओके, ये फर्स्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, द मूवी स्टार वॉज एक्यूज्ड ऑफ अ misdemeanor when she stole $15 worth of merchandise from the store. Okay, this one is second question. Then third is, the congregation sang a contemporary hymn. Okay, fourth is, the wound were necrotic when examined. Then the fifth question is, the defendant exhibit a peevish appearance. Then the sixth one is, the band director was scheduled to play the piccolo on Tuesday. Then the seventh one is, the renter was remiss about the rent. Eighth is, the old man was known for his sapient knowledge.
So the ninth is the inventor creates several specious ideas to solve the problem. And the last question is the teacher identified the troublemakers in her classroom. Okay, so एक एक करके क्वेश्चंस नु डिस्कस करते हैं. सब तो पहला क्वेश्चन है the con artist hoodwinked the old lady when she sold her fraudulent insurance. देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ वर्ड यूज होए हुए ने, ठीक है, ਜਿਹੜੇ कि थोड़े ਜਿਹੇ मुश्किल वर्ड्स हैं या तुसी ਉਹਨੂੰ कह दो वोकैबुलरी है. ऐसे वर्ड्स जर्नली पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ सिनोनिम्स एंटोनिम्स बन के आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. सो ध्यान नाल ਉਹਨਾਂ ਦੇ मीनिंग सुनिया करो. ओके, बिकॉज ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी ਤੁਹਾਨੂੰ किते ना किते हैल्प जरूर मिलूगी. सब तो पहला इत्थे वर्ड यूज होया कॉन. ओके, अगर आप कॉन की गल करिए, कॉन का मतलब की हुंदा है कोई ऐसा बंदा जिहड़ा कि झूठ बोल बोल के किसी नू कोई चीज़ मनवान ला दे. ओके, मीनस क्या है कि किसी नू झूठ बोल के किसी चीज़ उपर विश्वास दिलवाना, उन्होंने बोलते हैं कॉन. ओके, अगर मैं इंग्लिश गल करा तो यदा मतलब क्या हो गया परस्यूट. ओके, परस्यूट. द कॉन आर्टिस्ट हुडविंक्ड. हुडविंक मतलब क्या होंदा, ट्रिक करना, किसी नाल छलावा करना. ठीक है, ओके, भी ਜਿਹੜਾ कॉन आर्टिस्ट सी ਉਹਨੇ की ट्रिक खेली ओल्ड लेडी ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ उस लेडी ਨੂੰ फ्रॉडुलेंट इंश्योरेंस बेचती. ओके, सो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अगर कैपिटलाइजेशन की गल करिए, ਕਿਹੜਾ कैपिटल वर्ड है ਦਾ टी. ओके, जो कि बिल्कुल करैक्ट है बिकॉज ये मैं पिछली वीडियो भी बहुत बार दस चुकी. अगर कोई सेंटेंस है उसका फर्स्ट लैटर हमेशा कैपिटल होंगे, सो इस कोई गलती नहीं है. सैकेंड पंक्चुएशन की गल करते हैं, ये पंक्चुएशन के तौर पर फुल स्टॉप का यूज़ होया है, वो भी बिल्कुल ठीक है बिकॉज सिंपल सेंटेंस है. थर्ड, ग्रामैटिकल एरर चेक करते हैं. द कॉन आर्टिस्ट हुडविंग द ओल्ड लेडी वैन ही सोल्ड हर फ्रॉडलेंट इंश्योरेंस. ओके, तो हुडविंगड है मतलब सैकेंड फॉर्म यूज़ की हुई है, तो इतने सोल्ड है यानी कि पास्ट की गल हो रही है पूरे सेंटेंस के. सो ठीक है. उस तो बाद फोर्थ स्पैलिंग मिसटेक ही रह गई. सो यही आंसर अपना. ठीक है, हम इतने मिसटेक कि स्पैलिंग है, इतने मिसटेक है बेसिकली फ्रॉडलैंड दे विच. ठीक है, इतने स्पैलिंग क्या आने चाहिए, फ्रॉड, FRAUDULENT, फ्रॉडलैंड, फ्रॉडुलेंट. ओके, सो इतने ये स्पैलिंग आने सी इतने गलत दिते हुए हैं. सो अपने को नेक्स्ट है द मूवी स्टार वॉज एक्यूज्ड ऑफ अ मिसडेमिनर. देखो एक्यूज का मतलब क्या होंदा है भी किसी ते शक होना कि इन्हें क्राइम किया है. ठीक है, या फिर किसी ते इल्ज़ाम लगाना. ठीक है, कि जो मूवी स्टार नू एक्यूज किया गया तो इल्ज़ाम लगाया गया ऑफ अ मिसडेमिनर. ਇਹਦਾ मतलब क्या होंदा है क्राइम, ये वर्ड का. ओके, कि क्राइम का इल्ज़ाम लगाया गया जदों उन्हें स्टॉल किए $15 दे मर्चेनेडाइज. मर्चेनेडाइज मतलब क्या होंगे, ऐसे गुड्स जो कि बेचन के लिए रखे गए होन या फिर स्टॉक बोल सकते हैं. ठीक है, जदों मूवी स्टार ने $15 जिन्हों की कीमत सी ऐसे गुड्स नू चोरी कर लिया स्टोर तो उन्होंने एक्यूज किया गया कि इन्हें क्राइम किया है. ओके, सो हम एक एक करके चैक करते हैं. सब तो पहला कैपिटल वर्ड केड़ा इत्थे दा टी लैटर कैपिटल है जो कि बिल्कुल ठीक है. ओके, सो नैक्सट पंक्चुएशन का देखते हैं. पंक्चुएशन के इत्थे कॉमा यूज़ किया होया और फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मैं तुहानूं दस चुकी है बिल्कुल ठीक है बिकॉज सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप ही आऊगा. ओके, हुण आपां गल करते हैं कॉमा की. कॉमा मैं कित्थे दस्सिया सी यूज़ करना है जदों अपने कोल दो कोई ऐसे क्लॉजेस नू जोड़िया जाए जिहड़े कि एक दूजे के उपर इंडिपेंडेंट होवे ते उन्हां नू आपां ने कंबाइन करना है, तो उत्थे आपां उत्थे आपां कॉमा का यूज़ करते हैं. ओके, सो इत्थे देखो द मूवी स्टार वॉज एक्यूज्ड ऑफ अ मिसडेमिनर वैन शी स्टोल. इत्थे ऑलरेडी वैन यूज़ किया होया दो चीज़ों नू जोड़न दे लई. ठीक है, कि उन्होंने एक्यूज कदों किया गया क्राइम के लिए जदों उन्हें स्टोल किए $15 दे गुड्स हैं स्टोर चों. ठीक है, सो इत्थे कॉमा की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पंक्चुएशन की मिसटेक है. नैक्सट है द कॉन्ग्रीगेशन सैंग अ कंटैंपरेरी हाइम. देखो कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या होंदा है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होंदा है लोगों का इकट्ठा होना किसी रिलीजियस परपज़ के लिए. ठीक है, सो जिहड़ी कॉन्ग्रीगेशन सी उन्होंने कंटैंपरेरी हाइम गाई. जिहड़ा वर्ड कंटैंपरेरी है इत्थे बेसिकली चलो पहला आपां देखते हैं इहदे विच की है द टी कैपिटल है जो कि बिल्कुल ठीक है, इसलिए कैपिटलाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं है. सैकेंड पंक्चुएशन के तौर पर जस्ट फुल स्टॉप यूज़ होया है, यदी भी मिसटेक नहीं है. ओके, उस तो बाद ग्रामैटिकल एरर की है द कॉन्ग्रीगेशन सैंग अ कंटैंपरेरी हाइम. ठीक है, सैंग वर्ड ठीक है, द कॉन्ग्रीगेशन भी ठीक है, ये कोई ग्रामैटिकल एरर भी नहीं है. नैक्सट ये मिसटेक है स्पैलिंग की. कादे स्पैलिंग की, कंटैंपरेरी. कंटैंपरेरी के स्पैलिंग की होंगे हैं CON
TEMPORARY। ओके, ये वर्ड बहुत आंदा है एग्जाम्स दे विच, इहदा मीनिंग पूछा जाता है। ओके, सो जिहड़ा वर्ड कंटैंपरेरी है इहदा मतलब की हुंदा है लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। अगर कोई परसन है दो, ठीक है, वो सेम टाइम ते एग्जिस्ट करते सी तो आपां नूं बोलांगे कि ये दोनों की हैं, कंटैंपरेरी हैं। ठीक है, लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। दो इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हो वो भी कंटैंपरेरी हो सकते हैं। ओके, नैक्सट द वाउंड वर नैक्रोटिक वैन एग्जामिन। जोड़े वाउंड से नैक्रोटिक पाए गए जो उन्होंने एग्जामिन किया गया। ओके, सो ये देखो सब तो पहला टी कैपिटल है जो कि ठीक है। उस तो बाद अपने को पंक्चुएशन के तौर पर फुल स्टॉप का यूज़ होया, ये भी कोई मिसटेक नहीं है, ये तो थोड़ा याद ही हो गया होगा मैंने लगता है। ओके, उस तो बाद नैक्सट ग्रामैटिकल एरर चैक करते हैं। हुण ये देखो द वाउंड वर, हुण इत्थे जिहड़ा वर्ड है वाउंड, ओके, तो इत्थे हैल्पिंग वर्ब है वर। वाउंड की है, एक नाउन है जो कि सिंगुलर है। ठीक है, अगर नाउन सिंगुलर है तो ये नाल जिहड़ी वर्ब आऊगी वो भी की आऊगी सिंगुलर। जिहड़ी वर है वो बेसिकली एक तरह की हैल्पिंग वर्ब है। ये सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, बट वाउंड सिंगुलर नाउन है, इस दे लई इत्थे वर की बजाय आपां की यूज़ करांगे वॉज, जो कि सिंगुलर नाउन्स दे नाल यूज़ किया जाता है। ओके, सो इत्थे द वाउंड वॉज आऊगा, सो इत्थे ग्रामैटिकल एरर है। ओके, नैक्सट है द डिफेंडेंट एग्जिबिट अ पैविश अपीयरेंस। ओके, हुण देखो कैपिटलाइजेशन का सब तो पहला चैक करते हैं। टी कैपिटल है जो कि ठीक है, और तो पंक्चुएशन की भी कोई मिसटेक नहीं है। ठीक है, हुण थर्ड आपां गल करते हैं ग्रामैटिकल एरर की। द डिफेंडेंट एग्जिबिटेड अ पैविश अपीयरेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है, इत्थे कोई ग्रामैटिकल एरर भी नहीं है। ओके, उस तो बाद ये बेसिकली स्पैलिंग मिसटेक है। ठीक है, बिकॉज इत्थे वर्ड जिहड़ा डिफेंडेंट है वो स्पैलिंग गलत लिखे हुए हैं। डिफेंडेंट के स्पैलिंग की होंगे DEFENDANT। डिफेंडेंट मतलब क्या होंगे एक्यूज्ड। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन करते हैं सिक्स्थ। द बैंड डायरैक्टर वॉज शेड्यूल्ड टू प्ले द पिकोलो ऑन ट्यूजडे। पिकोलो की होंगे आ इंस्ट्रूमेंट होंगे। ओके, सो ये देखते हैं द बैंड डायरैक्टर वॉज शेड्यूल्ड टू प्ले द पिकोलो ऑन ट्यूजडे। एक एक करके ये मिसटेक लभदे हैं। ठीक है, सब तो पहला कैपिटलाइजेशन की देखते हैं। देखो इत्थे की है टी कैपिटल है जो कि ठीक है, बट इत्थे तुसी अगर ध्यान नाल देखो इत्थे वर्ड यूज़ होया ट्यूजडे। जो आपां फस्ट वीडियो दे विच तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि कैपिटलाइजेशन के रूल्स डिस्कस किए सी उस दौरान कि अगर अपने कोल किसी डे का नाम आ जाए, ठीक है, तो उन्होंने आपां कैपिटल लैटर लिखते हैं। उसका जो फस्ट लैटर होंगे जो भी आप डे का नाम यूज़ करिए, ओके, तो जो फस्ट लैटर उन्होंने कैपिटल च लिखा जाता है। सो इत्थे ट्यूजडे का जो टी है उन्होंने आप कैपिटल लिखांगे। ओके, सो इत्थे यही मिसटेक है, बेसिकली ये कैपिटलाइजेशन की ही मिसटेक है। सो नैक्सट क्वेश्चन है द रेंटर वॉज रिमिस अबाउट द रेंट। रेंटर कौन होंगे जिहड़ा कि किसी चीज़ नूं किसी तो किराए ते लैंदा है। अगर कोई चीज़ किसी तो किराए ते लित्ती जाए तो उसका किराया भी तो भरना पऊगा। ठीक है, सो जिहड़ा रिमिस वर्ड है, रिमिस का मतलब क्या होंदा है कि अपनी ड्यूटी जिहड़ी है उन्होंने अच्छे तरीके नाल ना निभाना। ठीक है, उहदे विच तुसी सावधान होके मतलब अपनी अटेंशन नहीं दे रहे। ठीक है, लापरवाही यूज़ कर रहे हो। सो रिमिस का अगर इंग्लिश मीनिंग देखिए क्या होंदा है लैकिंग केयर और अटेंशन टू ड्यूटी। लैकिंग केयर और अटेंशन टू ड्यूटी। ओके, कि जिहड़ा रेंटर सी रिमिस सी रेंट दे लई, मतलब परवाह नहीं करता सी कि मैनू रेंट भी भरना है। ठीक है, लापरवाह जिहा सी रेंट देण दे मामले दे विच। ओके, सो हुण देखो सब तो पहला इत्थे टी कैपिटल है जिहड़ी कि कोई मिसटेक नहीं है, सो कैपिटलाइजेशन दा ठीक है। उस तो बाद आपां नैक्सट गल करते हैं पंक्चुएशन दी। हुण इत्थे फुल स्टॉप यूज़ किया गया है तो इत्थे सैमीकोलन यूज़ किया गया है। जिन्हों ने फस्ट वीडियो देखी होवे उहदे विच मैं दस्सिया सी कि अगर अपने कोल दो क्लॉजेज हैं, ओके, क्लॉज 1 है क्लॉज 2 है, तो वो दो क्लॉजेज ने जिहड़े वो ऐसे क्लॉजेज हैं जिहड़े कि आपस च इंडिपेंडेंट है, मतलब उन्हां दा पूरा सेंटेंस फॉर्म हुंदा है अगर आप कल्ले कल्ले लैवल ते भी उन्होंने देखिए। ठीक है, जो आप ऐसे दो क्लॉजेज नूं जोड़ना होवे उत्थे आप सैमीकोलन का यूज़ करते हैं। सो अगर आप इन्हू देखिए ये वाला अपना क्लॉज 1 है द रेंटर वॉज रिमिस, तो सैकेंड क्लॉज के अबाउट द रेंट
कि जिहड़ा रेंटर है वो लापरवाह है, ठीक है, रेंटर जो है वो लापरवाह है। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ किते ना किते ਇਹ वाले क्लॉज का मीनिंग कह सकते हैं कुछ हद तक कि बंद है। बट अगर अबाउट द रेंट नहीं लिखांगे, अगर आप सॉरी अबाउट द रेंट नूं कल्ला देखिए, ठीक है, तो यदा कोई मतलब ही नहीं बनता। सो इसलिए इत्थे सैमीकोलन लगाना गलत है। इत्थे बेसिकली जिहड़ी एरर है वो किहड़ी एरर है, पंक्चुएशन दी। ओके, सो नैक्सट है द ओल्ड मैन वॉज नो फॉर हिज सेपियंट नॉलेज। सेपियंट वर्ड जिहड़ा है इहदा मतलब की हुंदा है, ये कोई ऐसे परसन दे लई यूज़ किया जाता है जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट होवे। ओके, सो कि जिहड़ा ओल्ड मैन है, जिहड़ा पर्टिकुलर कोई ओल्ड मैन है, वो जानिया जाता है अपनी सेपियंट नॉलेज के करके, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट है। ओके, सो सब तो पहला कैपिटलाइजेशन चैक करते हैं। ये टी कैपिटल दिता होया है जो कि ठीक है, ठीक है, ये कैपिटलाइजेशन की कोई मिसटेक नहीं है। उस तो बाद पंक्चुएशन दे विच अपने कोल फुल स्टॉप यूज़ होया है, ये भी कोई गलती नहीं है उरे, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आप चैक करते हैं ग्रामैटिकल एरर। द ओल्ड मैन वॉज नो। सो देखो इत्थे यूज़ होया वॉज, तो वॉज तो बाद आप थर्ड फॉर्म यूज़ करांगे वर्ब दी, ठीक है। अगर मैंने लिखा नो, नो की है ये बेसिकली फर्स्ट फॉर्म होंदी है। अगर सैकेंड फॉर्म की गल करिए, सैकेंड फॉर्म की होंदा न्यू। ओके, तो थर्ड फॉर्म की होंदा नोन। सो इत्थे आप थर्ड फॉर्म नोन यूज़ करांगे। द ओल्ड मैन वॉज नोन, ठीक है, नोन आऊगा उरे। सो ये बेसिकली सैकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सो इत्थे ही मिसटेक है, दैट इज़ ग्रामैटिकल मिसटेक है। नैक्सट है द इन्वेंटर क्रिएट सैवरल स्पीशियस आइडियाज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि जिहड़ा इन्वेंटर है उन्हें बहुत ही स्पीशियस आइडियाज़ क्रिएट किए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। स्पीशियस मतलब कि हुंदा ऐसे आइडियाज़ जो कि देखण दे विच तां ठीक लगन बट एक्चुअल दे विच सही ना होण। ओके, हुण देखो इत्थे की है द इन्वेंटर क्रिएट, ठीक है, इन्वेंटर की है एक तरीके का नाउन है जो कि सिंगुलर फॉर्म दे विच है। सो ये तो बाद जिहड़ी वर्ब आऊगी या हैल्पिंग वर्ब आऊगी वो किहड़ी आनी चाहिए है, सिंगुलर, ठीक है। आपां नूं पता है जिहड़ी भी वर्ब सिंगुलर होवे या हैल्पिंग वर्ब सिंगुलर होवे उहदे पिछे आपां एस और ई एस का यूज़ करते हैं। सो द इन्वेंटर क्रिएट्स आवे या तो अगर आप प्रेजेंट फॉर्म की गल कर रहे हैं क्वेश्चन दे विच, ठीक है। बट अगर आप इहनूं पास्ट टेंस दे विच चेंज कर रहे हैं तो इन्वेंटर क्रिएटेड आ सकता है, ठीक है। सो इत्थे इन्वेंटर क्रिएटेड भी ठीक है या इन्वेंटर क्रिएट्स भी ठीक है। ओके, सो इत्थे ग्रामैटिकल मिसटेक है। नैक्सट है द टीचर आइडेंटिफाइड द ट्रबल मेकरस इन हर क्लासरूम। टीचर ने अपनी क्लासरूम दे विच देखा कि सब तो शैतान कौन है, ठीक है, सब तो ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करने वाले कौन है। सो ये सब तो पहला कैपिटलाइजेशन का देखते हैं, टी कैपिटल है जो कि ठीक है, ये कोई मिसटेक नहीं है। सैकेंड नंबर पर पंक्चुएशन का चैक करते हैं, ये कॉमा यूज़ होया तो फुल स्टॉप यूज़ होया, ठीक है। फुल स्टॉप यूज़ करना ठीक है बिकॉज जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है। उस तो बाद अगर आप कॉमा की गल करिए द टीचर आइडेंटिफाई द ट्रबल मेकरस इन हर क्लासरूम, ठीक है। इत्थे आपां नूं कॉमा की कोई जरूरत नहीं है। कॉमा कित्थे यूज़ करते हैं जो अपने कोल कोई दो डिपेंडेंट क्लॉजेज होन तो उन्होंने अपन ने ज्वाइन करना हो, ठीक है। इत्थे ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज सेंटेंस ऑलरेडी अपने कोल फॉर्म हो रहा है। सो इत्थे बेसिकली किहड़ी मिसटेक है, सैकेंड, दैट इज़ पंक्चुएशन। ओके, सो ये सीगे सेंटेंसिस जिहड़े कि काइंड ऑफ एरर दे नाल रिलेटेड सी। अगर तुसीं ऑनलाइन भी चैक करोगे टोटल तुहानूं 20 सेंटेंसिस ही मिलणगे, ठीक है। मैं भी काफ़ी सर्च किए बट मैनूं ये 20 सेंटेंस ही मिले। ये 20 सेंटेंस के विचों ही जिहड़ा मार्कफेड का 6 जुलाई नूं पेपर कंडक्ट होया सी, उहदे विच 2 क्वेश्चनस डायरैक्ट आए हुए ने। सो एवें हो सकता है कि जिन्हां दा पेपर अगस्त दे विच है उन्हां नूं बाकी 18 दे विचों भी क्वेश्चनस आ जान, इसलिए ये सारे क्वेश्चनस मैं तुहानूं अच्छे तरीके नाल डिस्कस करवाते। ओके, सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। अज लई इन्ना ही। थैंक यू सो मच।